of Bohr's model. Limitations of Bohr's model. First is Bohr's model is applicable for Bohr's model is applicable for single electron atoms only. सर एक बार रिपीट कर दो. Bohr's model is applicable for single electron atoms only, like hydrogen or helium positive or lithium dipositive. Next, Rutherford stated that Bohr stated that electrons move around the nucleus. Electrons move around the nucleus. In non-radiating orbit, electrons move around the nucleus in non-radiating orbit. Whereas according to Maxwell's theory, whereas according to Maxwell's theory, accelerated charged particle always radiates energy. According to Maxwell's theory, accelerated charged particles always radiates energy. In the form of electromagnetic waves. Third is electron orbits in Bohr's model are circular. Whereas Sommerfeld सर एक बार लास्ट में रिपीट कर दो भाई. समर whereas Sommerfeld SOMMERFELD सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज. क्लियर नहीं आया थोड़ा सा. Sommerfeld 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 proved that if electrons move around the nucleus, the path must be elliptical. If electrons move around the nucleus, the path must be elliptical. Next, Bohr's model cannot explain splitting of spectral lines
under the effect of. Splitting of spectral lines under the effect of electric or magnetic field. Splitting of spectral lines under effect of electric or magnetic field. Splitting of spectral lines under electric or magnetic field. There is Stark and Zeeman effect. There is Stark and Zeeman effect. Next, in Bohr's model, both position, सही बार रिपीट कर दो बोहर्स मॉडल both position and speed of electron can be calculated accurately and simultaneously. Can be calculated accurately and simultaneously, which is against Heisenberg uncertainty principle. Which is against Heisenberg uncertainty principle. Which is against Heisenberg uncertainty principle. Next, Bohr's model does not take into account the wave properties of electrons. Bohr's model does not take into account the wave properties of electrons. Next, distribution of electrons in different electron orbits. So last point is count the wave properties of distribution of electron in different electron orbits. Is not given by Bohr's model. Is not given by Bohr's model. Next is दो definitions लिखनी है, excitation potential and ionization potential. So first is excitation potential. बेसिक चीजें हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है जो केमिस्ट्री में बड़ा है. Normally हम लेते हैं excitation is a phenomena in which electrons absorbs energy and move to the higher energy state. So the process is known as excitation. Excitation energy will be the minimum energy required
to make the electron move from its ground state or stable state to the higher energy state. And excitation potential क्या हो जाएगा? The minimum potential required, which can provide energy to make an electron move from the lower energy state to the higher energy state. और excitation energy की maximum value क्या हो सकती है? और excitation energy की maximum value और ionization energy में relation सेम होंगे then. सेम होंगे, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू मतलब अगर उसको ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट क्वांटम नंबर स्टेट में लेके जाना है, so that's also the ionization energy की energy required to free an electron, कि minimum energy required to make an electron move from ground state to n is equal to infinity. So n is equal to infinity free state है. फ्री स्टेट है मतलब यहाँ तो एनर्जी जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, तो हमें मिनिमम एनर्जी बतानी है तो हम जीरो के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर देते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्राउंड स्टेट में है और वो बाउंड है तो वो एनर्जी नेगेटिव में होगी. आप उतनी एनर्जी पॉजिटिव में दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और यू कैन से दैट एनर्जी विल बी इक्वल्स टू द आयनाइजेशन एनर्जी. So excitation potential, first you can write the process in which electrons absorb some energy in the ground state, and move to electrons absorb some energy in the ground state and moves to the higher energy state. Electrons absorb some energy and moves from ground state to the higher energy state. It's called excitation. And the atom is said to be in excited state. Next, the minimum energy required. इसी के आगे लिख लेना. The minimum energy required to move an electron from ground state to higher energy state. It's called excitation energy. अब next paragraph में लिख लो. The minimum accelerating potential. Which provides electron sufficient energy to move from ground state to one of the higher energy states is called excitation potential. So we can write in this form.
So and so on. ये तो एनर्जी होगी. If I ask excitation energy, first excitation energy. First excitation energy. Electron moving from ground state to n is equal to n is equal to 1 to n is equal to 2. E2 minus E1. First excitation energy. सब ब्रॉडकास्ट कर दो. हाँ जी सर सर ब्लर आ रहा था. ये थोड़े दिन से प्रॉब्लम्स हुई हैं, पहले भी आती थी. नहीं थोड़े सर दिन अभी से जस्ट आने शुरू हुई है. सर अभी अरे ये नहीं पहले से ही था. बुला के दिखाता हूँ बिकॉज 11th वाले मेरे को यहाँ तो बोलते नहीं. मे बी शायद अभी वो नए नए आए हैं इसलिए बोल नहीं रहे. बट ऐसे आनी नहीं चाहिए ना इतनी प्रॉब्लम. फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जीज. सर कोड क्या था? 951 953. So 10.2 electron volt will be excitation energy and excitation potential will be 10.2 volt. Corresponding excitation potential is 10.2 volt. ठीक है. तो सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल कितनी हो जाएगी फिर? n is equal to 1 to n is equal to 3. n is equal to 3 में एनर्जी है 1.51. तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी is 12.1 and excitation potential will be 12.1 volt. Energy is 12.1 electron volt and potential is 12.1 volt. लिखना है तो लिख सकते हो. Similarly, second excitation energy. अब मेरे को बुक की इमेज बताना है. ये क्लियर आती है, ये क्लियर पढ़ा जा रहा है. नो सर. सर जी ऊपर- एडवांस दिख रहा है बस और कुछ नहीं दिख रहा. सर नीचे वाला J फिजिक्स advance. दिख रहा है और जी एडवांस बस. सर वो भी वे दिख रहा है, पता नहीं. नेट का इशू है. किसी को क्लियर नहीं नजर आ रही इस टाइम? नहीं सर
No, sir. No, sir. सब पहले क्लियर होता था, मतलब 2 साल हो गए यही पहले। देख रहा हूँ। बिल्कुल क्लियर था मैंने। जैसे सर बोर्ड स्टैटिक भी नहीं है, थोड़ा सा जैसे वेवी सा है। वो कनेक्शन रिगार्डिंग मेरे पास मैंने इस टाइम 2 कंप्यूटर से लाए हुए हैं। एक तो लैपटॉप है, वो डायरेक्ट फोन कैमरा से कनेक्टेड है, उसमें तो इमेज बिल्कुल क्लियर है। दूसरा मैं एक और स्क्रीन पे लैपटॉप नेट के थ्रू चला रहा हूँ, वहां पे ब्लर्ड आ रही है। लेकिन सुबह एयरटेल वाले आए थे, वो भी मतलब उस टाइम पे ठीक था। लेट्स सी, कल रिलायंस वालों को भी बुलाते हैं, वो भी करके जाएं क्या करना। क्योंकि स्पीड वैसे ही इतनी शो करता है, बट इमेज अगर क्लियर नहीं जा रही तो उसका रीजन क्या है। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, if energy supplied if energy supplied is so large if energy supplied is so large that it can remove an electron that it can remove an electron from outermost orbit from an atom. The process is called ionization. सर एक बार रिपीट कर दो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। Orbit of an atom, the process is called ionization. आउटरमोस्ट ऑर्बिट हम ग्राउंड स्टेट में लेते हैं, एक्साइटेड में नहीं लेंगे। और वी कैन से दैट ionization is, or we can say that ionization is ionization is the phenomena of ionization is the phenomena of removal of electron from ground state of an atom, from ground state of an atom. And the minimum accelerating potential required and the minimum accelerating potential required to provide the energy for removal of electron from an atom in its ground state is called ionization potential. Required to provide the energy for removal of electron, क्या किया था? From ground state of an atom. Next paragraph में लिख लो, for example, energy of electron
Energy of electron in ground state of hydrogen atom is energy of electron in ground state of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. Therefore, ionization energy is plus 13.6 volt, 13.6 electron volt, and corresponding ionization potential is plus 13.6 volt. Corresponding ionization potential is plus 13.6 volt. So you can write a question. If proton had a radius capital R, if proton had a radius capital R and the charge on it was uniformly distributed. Calculate using Bohr's theory. Ground state energy of hydrogen atom if ground state energy of hydrogen atom if R is equals to 10 angstrom. If R is equal to 10 angstrom and B part is R is equal to 0.1 angstrom. R is equal to 0.1 angstrom. So हमें बताना है what will be the ground state energy. ये हो जाएगा, सिंपल न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की, कैसे करना होता है इसको. मतलब ये रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्यों दिया है? Why they have given the radius of proton. एक बारी 0.1 एंगस्ट्रॉम और एक बारी 10 एंगस्ट्रॉम. इसका क्या करें? इनफैक्ट मेरे को सिर्फ फर्स्ट पार्ट का बताओ, जब आर की वैल्यू 10 एंगस्ट्रॉम है. 10 angstrom means how many meters? 10 raised to power minus 9. और बोहर्स मॉडल में एटम का साइज क्या था? एटम का साइज Raised to power minus 10. 10⁻10. मतलब इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इनसाइड अ पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन.
बिकॉज प्रोटॉन का हमें दिया कि प्रोटॉन हैड अ रेडियस कैपिटल आर और कैपिटल आर की वैल्यू दे दी है 10 एंगस्ट्रॉम। तो कैसे सॉल्व करेंगे फिर, इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? Q into V और V स्फीयर के लिए फॉर्मूला जो था। आपको गॉस लॉ लगा के यू हैव टू फाइंड द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस और फिर उस चार्ज को लेंगे बिकॉज उस चार्ज के कारण हम लेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ जो इंटरनल चार्ज है उसके कारण है। इट्स नॉट ड्यू टू द होल चार्ज ऑन प्रोटॉन, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ओनली ड्यू टू द चार्ज व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड इट। और हमें बिकॉज उन्होंने कहा है कि इन अकॉर्डेंस विद बोहर्स मॉडल लेना है। बोहर्स मॉडल में तो आप साइज क्या लोगे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का? 0.529 5 एंगस्ट्रॉम। तो वैसे सॉल्व करना था इसको करके देखना। आपकी जो एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी आएगी 0.068 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पोटेंशियल एनर्जी आएगी -3.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर को मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया था उन्होंने। सर स्मॉल आर क्या है इसमें? मतलब दो, एक तो कैपिटल आर या प्रोटॉन का रेडियस, पर जो एटॉमिक रेडियस है वो उससे कम है। मतलब इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इनसाइड दैट स्फीयर व्हिच इज ड्यू टू प्रोटॉन चार्ज। आपको ऐसे बनेगा ना डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो। कि आपके पास प्रोटॉन तो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रीजन में, इस पूरे में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहा है यहाँ पे। तो आपको एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा और इसके अंदर जो चार्ज है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एक बार वैल्यूज रिपीट करें तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है -3.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और काइनेटिक एनर्जी की 0.068 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.068 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर इसका एक कंसेप्ट दोबारा बता दो प्लीज, उस टाइम थोड़ा नेट वीक था, सुनाएंगे। आपको इस केस में जो चार्ज ऑन प्रोटॉन लेना है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो आप नॉर्मली न्यूक्लियस पे चार्ज ई लेते थे, इसमें ई नहीं लेना। आपको चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस निकालना पड़ेगा। और सर पोटेंशियल एनर्जी के लिए वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो Q आप into क्या V। कर सकते हो, आपने पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड सॉलिड स्फीयर निकाली थी, याद है किसी को फॉर्मूला? Q/2R cube into 3R square minus R square। को यूज करके भी कर सकते हो। सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी डबल क्यों नहीं है काइनेटिक एनर्जी पे? बिकॉज ये नॉर्मल कन्वेंशनल सर्कुलर बात नहीं है ना। मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मूव कर रहा है वो, अगर वो बाहर मूव करता तो फिर वही वैल्यूज आनी थी, -27.2 और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो दूसरी वैल्यू दी है 0.1 एंगस्ट्रॉम, उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। बट इसमें तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मूव कर रहा है, तो जो पोटेंशियल है वो पूरे चार्ज के कारण नहीं है, किसी पार्ट के कारण है सिर्फ। तो इसलिए वो सर्कुलर के फॉर्मूला नहीं लगेंगे इसमें जनरल वाले। मतलब ऐसे कभी पॉसिबल नहीं है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया उन्होंने सिर्फ। सेकंड नेक्स्ट राइट।
An electron in hydrogen-like atom. An electron in hydrogen-like atom is in excited state. It has total energy of minus 3.4 electron volt. Find de Broglie wavelength of electron. Find de Broglie wavelength of electron. Easy है. So value क्या है? टोटल एनर्जी कितनी है? माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3.5 प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर काइनेटिक एनर्जी E है तो मोमेंटम इज अंडर रूट 2me. Momentum is under root 2me and de Broglie wavelength is h by p. तो काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम आ जाएगा अंडर रूट 2me और de Broglie wavelength is lambda is equal to h by p. कर दो सॉल्व इसको. सिक्स 6.6 angstrom. चेक कर लेना. मैंने वो बुक रख दी जिसमें से क्वेश्चन लिखा आया था. 6.6 ही होगा. फॉर्मूला लगाना है सिर्फ. बेसिकली कन्वर्जन करनी है. लैम्डा इज इक्वल्स टू ये कैलकुलेशन करनी है जो भी आंसर आएगा. और आप में से जिसने टर्म 1 की प्रैक्टिस करनी है ना, बिकॉज अभी तक जो आइडिया लग रहा है, सीबीएसई कल सिलेबस कमेटी की मीटिंग थी फिजिक्स की, तो वहां पे जो कंक्लूजन निकली है कि आपका टर्म 1 का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होगा. एमसीक्यूज जो होंगे, तो अगर वो कहते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड है, तो एक ना बुक आती है मेडिकल वालों के लिए थी वैसे, वो मेडिकल नीट के प्रिपरेशन के लिए, एमटीजी पब्लिकेशंस की एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स. सारे सब्जेक्ट्स की आती है. मेरे को बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता, फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ सर. एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स. उसमें क्या है कि एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब बेसिकली हर सेंटेंस के ऊपर उसने एमसीक्यू बना दिया. तो आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे वो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स कर लेना. मेडिकल वाले तो वैसे भी वो बुक करते हैं बिकॉज एनसीईआरटी बेस्ड काफी क्वेश्चंस होते हैं उनके. बट बाकी लोग भी जिसने सिर्फ टर्म 1 के लिए प्रिपेयर करना है तो उसमें से कर सकते हो, उस बुक में से. और एमटीजी पब्लिकेशंस की है, जलंधर में नहीं मिलेगी तो ऑनलाइन मंगा लेना, बिकॉज वो सिर्फ बोर्ड के लिए. मैं जेई मेंस तो उसके लिए नहीं बोल रहा. एडवांस के लिए बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत. हाँ जी. सर क्या क्या नाम है? एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स. तो उन्होंने अगर कहा है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर बनाना है, तो फिर उस बुक ने बेसिकली एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, तो आप उसमें से कर सकते हो तैयारी टर्म 1 की. नेक्स्ट राइट.
a helium positive ion is at rest. A helium positive ion is at rest and is in ground state. Helium positive ion is at rest and is in ground state. A neutron with initial kinetic energy K, a neutron with initial kinetic energy K collides head-on with helium positive ion find the minimum value of K so that there can be an inelastic collision, so that there can be an inelastic collision between these two particles. There can be an inelastic collision between these particles. इसका मतलब क्या है? There can be an inelastic collision. मतलब inelastic collision होगी तो there must be some loss of kinetic energy. तो हमने बताना है K की minimum value कितनी हो so that there is some loss of kinetic energy. Whatever it is, कितना loss है, क्या है? Not saying perfectly inelastic. There is some loss of kinetic energy. So हमारे को ऐसे given है. So you have a neutron which is moving with certain kinetic energy K. And say its velocity, let it be V naught. एक हीलियम पॉजिटिव आयन से कोलाइड करता है. अगर न्यूट्रॉन का मास m है तो हीलियम पॉजिटिव आयन का मास 4m. क्लियर है? Yes. दिस इज बिफोर कोलिजन. ये रेस्ट पे है. आफ्टर कोलिजन मैं assume करता हूँ let this be moving with a velocity vf. और helium positive ion starts moving with v1. कोलिजन के बाद हमने k की मिनिमम वैल्यू बतानी है. So that collision is inelastic. डायग्राम समझ में आया मैंने क्या बनाया? डायग्राम समझ आ रहा है सबको? Yes. इधर एनर्जी कितनी है? K K. या हाफ m v नॉट स्क्वायर. फाइनल एनर्जी कितनी है? हाफ m इंटू वी एफ स्क्वायर प्लस हाफ 4m इंटू v1 स्क्वायर. अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन लेता तो vf और v1 में रिलेशन क्या होता? बराबर होते दोनों. बराबर होते. तो अगर मैं इन दोनों को बराबर ले लूं तो लॉस ऑफ एनर्जी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? Maximum. मैक्सिमम. तो उस कंसेप्ट को यूज करो. कंसेप्ट लिख लो पहले इसका जो बेसिक चाहिए हमारे. So you can write if a moving neutron collides with stationary helium positive ion,
if a moving neutron collides with a stationary helium positive ion, then maximum loss of energy takes place if collision is perfectly inelastic. Also, the loss during collision can only be used. Loss during collision can only be used to excite the electrons to higher energy state. To excite the electron to higher energy state in helium positive ion. सर एक बार रिपीट कर दो टू एक्साइट To excite the electrons to higher energy state in helium positive ion. अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन, अभी मैं हीलियम की बात नहीं कर रहा, हाइड्रोजन एटम में मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी कितनी थी? 10.2 electron volt. 10.2. हीलियम में एनर्जी Z² टाइम्स ज्यादा होती है, तो हीलियम में मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी? 40.8. Yes. एटलीस्ट इतनी एनर्जी तो चाहिए अगर लॉस ऑफ एनर्जी, बिकॉज अगर हमें दिया है कि लॉस ऑफ एनर्जी है, लॉस ऑफ एनर्जी है, तो वो मैंने लिखा कि लॉस ऑफ एनर्जी जो है दैट इज यूज्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन. एक्साइट करने के लिए मिनिमम 40.2 चाहिए. नेक्स्ट लेवल पे कितना हो जाएगा? सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या थी? 12.1. तो उसका 4 टाइम्स, मतलब 48.4. तो वो एक्साइटेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है. बट क्योंकि हमें मिनिमम के साथ डील करना है, तो हम लेंगे कि एटलीस्ट जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है. So you can write for helium positive ion. For helium positive ion, first excitation energy is, for helium positive ion, first excitation energy is first excitation energy is सर एनर्जीज के बाद क्या बोलूँ for helium positive ion, first excitation energy is 40 point. Eight electron volt. This means that loss of energy should be at least 40.8 electron volt. If we assume the collision to be perfectly inelastic, then final velocity of neutron and helium ion should be same.
मतलब न्यूट्रॉन कैप्चर की, न्यूट्रॉन कैप्चर कर लिया हीलियम पॉजिटिव आयन, अब दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था? mv0। फाइनली अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v0/5। ठीक है या नहीं ठीक? अगर मैं v0/5 लेता हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो गया? k/5। ठीक है इतना। 4k/5 किससे ज्यादा होना चाहिए? 40.8। बिकॉज ये मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी इतना है, तो k की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए? फिफ्टी वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ k शुड बी 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जैसे अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन एनर्जी से कम एनर्जी थी तो एक्साइट नहीं करेगा, लेकिन वो जो एनर्जी थी वो तो वेस्ट ही हो गई। नहीं नहीं, क्वांटाइजेशन ऐसे नहीं होती ना। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर आप 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी दोगे वो लेगा ही नहीं, ओके सर। वो एटलीस्ट 40.8 ही लेगा। मतलब क्वांटाइज्ड का मतलब यही होता है कि सारी एनर्जीज पॉसिबल ही नहीं है। लेगा नहीं का मतलब होता है कि जैसे मान लो इसमें मिनिमम 40.8 चाहिए थी, आपने 30 दी, तो वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नहीं जा पाएगा तो वापस आ जाएगा। तो क्वांटाइज स्टेट्स का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी विच आर लेस देन द एक्साइटेशन एनर्जी, वो एनर्जीज वो एब्जॉर्ब ही नहीं करता। नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इसमें हमने फाइनल वेलोसिटी इक्वल क्यों ली? सर मैं नेट वीक हो गया था इसलिए मैं बिकॉज मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी तभी होगा ना अगर वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। बिकॉज अगर मैं सिंपल इनइलास्टिक लेता हूँ तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, v1 और vf। तो अब और कोई हमें दिया नहीं है, तो फिर हम लॉस ऑफ एनर्जी निकाल ही नहीं सकते थे वैसे भी। तो हमें अपने आप से ज्यूम करना पड़ेगा कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन अगर है तो। ओके। नेक्स्ट। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल of a hypothetical hydrogen atom
first excitation potential of hypothetical hydrogen atom is 15 volt. Find third excitation potential for this atom. Find सर एक बार third रिपीट कर दो, हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। first excitation potential of a hypothetical hydrogen atom is 15 volt. Find third excitation potential. So 75/4. 75/4. अगर हमें एक्साइटेशन पोटेंशियल दी है, एक्साइटेशन पोटेंशियल दी है से 15 वोल्ट, तो एक्साइटेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 15 electron volt. तो आप सिंपल कंसेप्ट लगाओ ना, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब n is equal to 1 से n is equal to 2। ये हमें दी है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी अगर E नॉट है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगी E0/4 माइनस माइनस E0। यही बनेगा फॉर्मूला E2 माइनस E1 का। Yes. Because energy is inversely proportional to n square. So this is 3 E0/4. This is 15. Means E0 is 15 into 460/3. Okay. अब थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी? n is equal to 1 to n is equal to 4. So you get delta E is equals to (15/16 E0). And excitation potential is 75/4 electron volt. (75/4 volt). क्लियर है सबको कैसे किया है? देखो कोई स्टेप नहीं आ रहा समझ तो। ये सबको समझ में आया मैंने इक्वेशन कैसे लिखी? बिकॉज एनर्जी का sir. फॉर्मूला हमारे पास होता है, एनर्जी इज माइनस E0/n²। हाइपोथेटिकल एटम है तो E0 इज माइनस 13.6 z²। तो हमने उसी की वैल्यू निकालनी थी पहले। So E0/n² ले लिया और फिर उसको दो बार अप्लाई कर दिया। पहले n is equal to 1 to n is equal to 2, फिर n is equal to 1 to n is equal to 4। देखो क्लियर है? किसी को इसमें डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट टाइम करते हैं। फिर इसके मैंने 2 असाइनमेंट्स भी सेंड की थी सुबह, से वो भी करके देख लेना। एटॉमिक स्ट्रक्चर की है वो।
सर वीडियोस भी अपलोड कर देना। कर दूँ